मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज हम बात करने वाले हैं कछार जिला अंतर्गत लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजदीप ग्वाला की। जी हाँ, कांग्रेस विधायक राजदीप ग्वाला की भाजपा में शामिल होने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। अब इस पर से पर्दा हट चुकी है। विधायक राजदीप ग्वाला शनिवार को गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मिलने। बहुचर्चित न्यूज चैनल ND24 के संवाददाता से बातचीत करते हुए विधायक राजदीप ग्वाला ने खुद ही बताया वह बिना कोई शर्त के भाजपा के जो प्राथमिक सदस्यता है उसके लिए आवेदन किए हैं। उनको उम्मीद है वो बहुत जल्दी भाजपा के दामन थामने वाले हैं। आज उन्होंने जब NDTV के संवाददाता से जो वार्तालाप की हम उसकी फुटेज देखें, उससे पहले आइए देख लेते हैं कि शनिवार गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी विधायक राजदीप ग्वाला गुवाहाटी में जाकर मिले। तो देखा आपने, विधायक राजदीप ग्वाला गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर भाजपा में जाने की जो उनका राह है वो लगभग साफ कर चुके। अब आइए सुन लेते हैं जब वो NDTV 24 संवाददाता से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने क्या कुछ कहा। আপুনি শেহতীয়াভাৱে কালি অমিত শ্বাহক লগ কৰিছে। যোৱাকালি আমাৰ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ মাননীয় অমিত শ্বাহজী তেখেতৰ লগত মই কালি লগ কৰিছোঁ। তাৰ আগতেই আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তেখেতৰ লগতো লগ কৰি তেখেতৰ মোৰ বিজেপি দলৰ যোগদানৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে মই আবেদন জনাইছোঁ আগতেই। কি কাৰণত এই ধৰণৰ আবেদন কৰিব লাগে, যিহেতু আপোনাৰ পিতৃ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিলে দীনেশ প্ৰসাদ গোলা, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা যথেষ্টখিনি পাইছে, তেনেস্থলত আপুনিও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আছে, তেনেস্থলত কি কাৰণত বিজেপিক বিচাৰিব লগা হ'ল? নাই, ইতিমধ্যে আমি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ, যিদৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি কাম, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যি উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছে, জনসাধাৰণৰ গৰীব জনসাধাৰণৰ কাৰণে যি কামবিলাক কৰি আছে এই গভৰ্ণমেণ্টে, অসমত বিশেষ কৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালজী এবং আমাৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেত যে টিম ৱৰ্ক চলি আছে আসাম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যি কামবিলাক চলি আছে, ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক চলি আছে, এই উন্নয়নৰ যাত্ৰাত ময়ো শ্বৰীক হ'ব খুজি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ যিটো নেতৃত্বত যিটো কাম কাজ চলি আছে, সেই কাম কাজৰ মাজেৰে আসন্ন নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱ নহয় নেকি নেকি? এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ভিজন নাই, দেৰ ইজ ন' ভিজন। যি দলৰ কোনো ভিজন নাথাকে এই দলত মই নাথাকোঁ। আসন্ন নিৰ্বাচনত আপোনাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা কিবা এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা বা আলোচনা হৈছে নেকি বিজেপিৰ লগত? মই বিজেপিৰ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ কাৰণে মই আবেদন কৰিছোঁ আৰু বিজেপি দলে মোক যি দায়িত্ব দিয়ে মই আনকণ্ডিশ্যনেলি মই আবেদন কৰিছোঁ, কোনো কণ্ডিশ্যন নাই। দলে যি সিদ্ধান্ত লয়, যি ৰেছপনচিবিলিটি দিয়ে সেইটো মই কৰিম। 21ত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? কাৰণ আপোনাৰ লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, ৰজলিনা তিৰ্কীকে আদি কৰি বিভিন্নজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে যে বিজেপি দললৈ গমন কৰিব সেইবিলাক বিধায়িকা। 21ৰ ইলেকশ্যনত বিজেপি দলে যি টাৰ্গেট লৈছে 100+ সেইটোৱেই হ'ব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা হৈ আছে যে আপোনাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? আৰু শেহতীয়াভাৱে অজন্তা নেওগৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায়, তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব নকৰে এইবিলাক সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁক কৰিছিলে, আপোনাৰ জিলা সভাপতিৰ পৰা পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছিলে। মই এইটো ক'ম কি মোক যেতিয়া এক্সপেল কৰিছে সেই সময়তে মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ দলে যিটো এতিয়া আনহলি এলায়েন্স কৰি আছে AIUDFৰ লগত, সেইটো লৈ কংগ্ৰেছৰ বহুত কৰ্মীৰ মনত অসন্তুষ্টি আছে। আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ বৰাকত চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টক আমাৰ বৰাকৰ জনসাধাৰণে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে অপজিট ষ্টেণ্ড ল'লে। সেই আৰু বিভিন্ন ইছ্যু আছে, এই ইছ্যুবিলাকৰ কাৰণে যি পলিচি লৈছে কংগ্ৰেছ দলে, সেই ইছ্যুবিলাকৰ কাৰণে এই পলিচি ৰং পলিচি, এইটো পাব্লিকৰ এগেইনষ্টৰ যি পলিচিবিলাক গ্ৰহণ কৰিছে এই দলে, সেইকাৰণে পাব্লিক এতিয়া কংগ্ৰেছ দল এৰি গৈছে। আপোনাৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটীত হ'ব পাৰে নে বৰাক উপত্যকাত হ'ব? যোগদান প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ
আমার স্টেট বিজেপি নেতৃত্ব আছে, বিজেপি লিডারশিপ, পার্টি লিডাৰশ্বিপে দে উইল ডিচাইড। মানে বৰাকত হ'ব পাৰে নে বা গুৱাহাটীত? এইটো গোটেই ষ্টেট লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত বা আমাৰ পাৰ্টিৰ লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এই বিষয়ত আপুনি সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত কিবা বাৰ্তালাপ কৰিছিলে যে বিজেপি গমনৰ ক্ষেত্ৰত? সেইটো মই মোৰ লগত যি মানুহে বা জনসাধাৰণে কাম কৰি আহিছে সবৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সবেই মোক সমৰ্থন জনাইছে। तो सुना आपने, इससे साफ प्रतीत होता है कि बहुत जल्द ही विधायक राजदीप ग्वाला भाजपा की दामन थामने वाले हैं। खैर, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। भारत के गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर थे। आज उनका यात्रा का अंतिम दिन था। वह गुवाहाटी छोड़ने से पहले गुवाहाटी स्थित शक्ति मंदिर यानी कामाख्या मंदिर का भी दर्शन किए। आइए देखते हैं। राम मंदिर निर्माण हेतु बराक घाटी में अगले 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सहायता राशि संग्रह अभियान चलाया जाएगा। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। दरअसल जितने भी राम भक्त हैं सभी ये चाहते हैं कि राम मंदिर उनके ही द्वारा दिया गया सहायता राशि से निर्माण की जाए, इसमें सरकार का कोई भी पैसा ना लगे। इसी उद्देश्य से अगले 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष में जितने भी राम भक्त हैं सभी से सहायता राशि संग्रह किया जाएगा। लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार सहायता राशि दे सकते हैं। গতি রেখে আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রাণ শ্রী রাম জন্মভূমি নিধি সমর্পণ সমিতি গঠন করেছি। সেই সমিতির মাধ্যমে আমরা 2016 গ্রামে 4,65,000 অধিক জনগণের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব এবং তার সাথে থাকবে আমাদের কুপন 10 টাকার, 100 টাকা, 1000 টাকা এবং কিছু রসিদ। এই নিয়ে আমরা সবার কাছ থেকে দান সংগ্রহ শুরু করব আগামী 15 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি অবধি। তো আমরা এই সমিতির পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ প্রদান করে এই মহান যজ্ঞে আপনারা সামিল হন। সর্বভারতীয় স্তরে 15 জানুয়ারি থেকে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা ছিল, কিন্তু যেহেতু আসামে নির্বাচন সেটাকে মাথায় রেখে আমরা এই প্রান্তে আগামী 15 জানুয়ারি থেকে 31 জানুয়ারি এই 15 দিন ব্যাপী আমরা ব্যাপক ধন সংগ্রহ অভিযান সমগ্র বরাক উপত্যকায় অর্থাৎ ডিমা হাসাও নিয়ে আমরা অভিযান শুরু করব। এই রাম মন্দিরে আমরা প্রায় 1200 কোটি টাকার আমরা বাজেট ধরেছি। তার মধ্যে আমাদের অঞ্চল থেকে আমরা আশা করছি যে অন্তত 1.5 থেকে 2 কোটি টাকা এই বরাক উপত্যকা এবং ডিমা হাসাও জেলা থেকে আমরা সংগ্রহ করব। তাছাড়াও আমরা আশা করি এর চেয়েও বেশি আমরা অর্থ সংগ্রহ করতে পারবো। তো আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই বরাকবাসী তথা ডিমা হাসাও জেলার জনগণকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ প্রদান করে নিজেকে ধন্য মনে করুন। आज बराक घाटी के उधारबन स्थित ऐतिहासिक तीर्थस्थल काचाकांदी मंदिर का 42वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। कोविड-19 के कारण इस वर्ष सिर्फ एक दिन का ही आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ पूजन अर्चन ही किया गया। वार्षिक उत्सव के अवसर पर इस वर्ष महाप्रसाद वितरण भी नहीं किया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও শ্রী শ্রী কাচাকান্দি সেবা সমিতি শ্রী শ্রী কাচাকান্দি মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার 42তম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। তবে এইবার কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আমরা এই উৎসবকে এবার 2 দিনে নিয়ে যাইনি।
শুধুমাত্র অগ্রহায়ণের যে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, যেটা আজকে 27শে ডিসেম্বর রোববার পড়েছে, আমরা সেই একই দিনে তিথি পূজা এবং বার্ষিক উৎসব আমরা পালন করতে যাচ্ছি। আমরা এই বিশেষ পরিস্থিতি নজরে রেখে রান্না করা মায়ের প্রসাদ আমরা বিতরণ এবারের মতো বন্ধ করেছি। আমরা এবার দান সংগ্রহের জন্য বাইরে যাইনি, বিশেষ প্রচারও করিনি, কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলো হয় এগুলো এবারও মন্দিরে হচ্ছে। কাচাকান্তি মায়ের বিশেষ পূজা ছাড়াও চণ্ডী দেবীর পূজা এবং সপ্তশতী চণ্ডী মহাযজ্ঞ মন্দিরে হচ্ছে। আমরা আপামর ভক্ত সাধারণের কাছে আমাদের এইবারের যে সমস্ত ত্রুটি রয়ে গেল এর জন্য আমরা মার্জনা চাইছি। পরিশেষে কাচাকান্তি সেবা সমিতির তরফ থেকে এবং আপামর ভক্তদের পক্ষ থেকে মা কাচাকান্তির চরণে প্রণিপাত জানিয়ে নিবেদন করছি, মা এই যে দুর্যোগপূর্ণ সময়, এই করোনা মহামারীর হাত থেকে আমাদেরকে সমস্ত পৃথিবীবাসীকে মুক্ত করো অতি শীঘ্রই। ধন্যবাদ। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। दिघर सिरिकोना के आमिन नामक अवकाश प्राप्त शिक्षक अमलाबाग जीपी के एक ग्रुप सदस्य के ऊपर मानहानि मामला करने की धमकी दिए हैं। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। দ্বিতীয় খণ্ডের 7 নম্বর দিঘর সিরগুনা আলমবাগ জিপি গ্রুপ মেম্বার এর স্বামী একলাফুদ্দিন মজুমদার 17/12/2022 তারিখে ডিসি মহোদয়ের কাছে একটা স্মারকপত্র প্রদান করিয়াছিল। যা সেই স্মারকপত্রে উল্লেখ ছিল আমি আলিমুদ্দিন লস্করে 100টা কেস আমি তার উপরে করছি, কিন্তু যদি গ্রামের মানুষের উপরে কেস করি, আমি সবসময় নানান রকম অত্যাচার করি, যদি এগুলাই প্রমাণ করে দেখাইতে পারে, তখন মহোদয়ের কাছে তার কাছে আমি চ্যালেঞ্জ জানাই এবং মহোদয়ের কাছে আমি ওইটাই বক্তব্য রাখি যে যদি সে প্রমাণ করে দিতে পারে তখন আইনত যে ব্যবস্থা হয় আমার উপরে করবা, আর যদি না হয় সে আমার কাছে মাপ চাইতে লাগবো। আমি মানহানির মামলা করতে প্রস্তুত। বিগত দিনে দেখা যায় সেই একলাসউদ্দিন মজুমদার আমার উপরে, আমার ছেলের উপরে, আমার ভাই ভাতিজার উপরে তার বউ দিয়ে একটা রেপ কেস করছে। সেই কেসটা বর্তমানে কোর্টও বিচারাধীন চলে। এইরকম হে ভাড়াটি মানুষ নিয়ে গতদিন ভাড়াটি মানুষ নিয়ে 300 টাকা রুজ দিয়া গাড়ি ভাড়া দিয়া নিয়া মানুষরে নিয়ে জমাইছে, নিয়ে বিকালে সপ্তাহ পেমেন্ট দিকানো দিছে এবং বর্তমানে স্যার আমারে মার্ডার করতো, আমারে প্রাণে মারার হত্যা করতো, হুমকি দিত, নানান রকম ধারালু অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে। তার বিহিত ব্যবস্থা যেন প্রশাসনের কাছে করার অনুরোধ রইল। चुनाव सामने है। सोनाई में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होती हुई नजर आ रही है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि किस दल से कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से एक दो ऐसे नाम हैं जो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिनको लोग एक उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं आशीष हलदार। आशीष हलदार पिछले दिनों सोनाई बाजार में अंग्रेजी नए वर्ष की शुभकामना देते हुए 2 बड़े बैनर यानी 2 बड़े होर्डिंग लगाए थे। उनके द्वारा लगाया गया नव वर्ष की शुभकामना की जो होर्डिंग थी, उसे रात के अंधेरे में किसी ने नष्ट करने की कोशिश की। होर्डिंग को फाड़कर टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिया गया है। इस बात पर आशीष हलदार के समर्थकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि आप चुनाव में किसे वोट देंगे वह आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन कोई आपको शुभ नववर्ष की शुभकामना देते हुए अगर एक होर्डिंग
या बैनर लगाता है तो उसे नष्ट करना सुशील समाज में शोभा नहीं देता। वहीं इस घटना को लेकर आशीष हलदार के समर्थकों का मानना है जो ऐसा काम किया है या करवाने का कोशिश किया है, लोग आने वाले चुनाव में उसे जवाब जरूर देंगे। दिघर श्रीकोना में पूर्व चाय मजदूर माखन मुर्मू के निवास स्थान को विगत 1 महीना पहले ही स्थानीय कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद भी खुलेआम आरोपी घूम रहे थे। तब जाकर बराक घाटी के बहुचर्चित सामाजिक संगठन हिंदी भाषी एवं चाय जन समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन के पास ज्ञापन सौंपने के बाद 1-2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद माखन मुर्मू के परिवार वालों के साथ और भी दरिंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसे देखते हुए आज हिंदी भाषी एवं चाय जन समुदाय मंच के बैनर के तले स्थानीय लोग तथा चाय एवं पूर्व चाय श्रमिकों की माखन मुर्मू के घर में एक सभा का आयोजन किया गया। सफल होने का गुण सिखाएंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, हमें लगता है कि वो जो परिवर्तन करने वाले आए थे वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। उन्होंने जो किया है, ये परिवर्तन हम लोगों के लिए शायद घर थोड़ा टूटा फूटा होगा, अब उसको लगता है कि अच्छा कुछ बनने वाला है। तो इस परिवर्तन से हम लोग को सीख लेना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आज इतना एक साथ हम लोग जुट हुए हैं, इसी कारण जुट हुए हैं कि कुछ परिवर्तन लाएंगे और हम सब अगर एक साथ परिवर्तन लाने में सफल हुए तो हम दूसरे के सामने एक उदाहरण बनेंगे। साहू समाज का एक बैठक आज शिव टीला के सौदागर सिंह एलपी स्कूल में आयोजित हुआ। रंजीत साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समाज सेवी मनोज कुमार शाह ने उपस्थितियों को इस विषय से अवगत कराया कि आखिरकार संगठन क्यों जरूरी होता है। उनके द्वारा कही गई बात सभी ध्यानपूर्वक सुनते हुए सभी ने उनको धन्यवाद ज्ञापन किया। सभी का ये कहना था कि हम लोग सिर्फ सोचते ही हैं, लेकिन आप हम सबको एकत्रित करने के लिए, हम सबको विकसित करने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। उसके लिए मनोज कुमार शाह तथा उनके सहयोगियों को उपस्थितियों ने धन्यवाद ज्ञापन किए। आज की सभा में शिक्षक मदन मोहन साहू, रंजीत साहू, मणिमोहन तेली, महेंद्र साहू, छोटेलाल साहू, शोभा रानी साहू प्रमुख ने अपने अपने विचार प्रकट किए। यही सब लेके काफी दिन से मेरा सोच था कि अच्छा संगठन बने। तो अभी हम लोग कोई समिति न बनाए हैं, न कोई सेंट्रल कमेटी, कुछ नहीं बनाए। हम लोग ये संगठन करने से पहले हर जगह जहाँ जहाँ हमारी संख्या है वहाँ जा रहे हैं। हम जा जाके सब लोगों का मत लेना है कि हम लोग जो कदम उठाने जा रहे हैं कि आप लोग इससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये करना उचित है या नहीं है। अगर आप लोगों का मत आता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो फिर हम लोग एक आने वाले समय में देखने को मिलेगा ये साहू समाज जो बराक में लिखा साहू समाज होगा। आज तक गुवाहाटी में भी है, गुवाहाटी से भी मेरा बात होता है हमेशा हम लोगों से। वहाँ भी इतना पावरफुल नहीं बन पाया है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया सब साइड में तो लोग अपना सेपरेट बना करके अपना काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उन लोग से भी कहीं विकासशील और कुछ अच्छा हम लोग करके दिखाएं। और 2 नंबर हो गया, हम लोगों का अंदर में जो समाज का जो भेदभाव था पहले से ही था, अभी तो बहुत कम गया है, पहले तो बहुत ज्यादा था। ये महंगाइया है, हम उससे शादी नहीं करेंगे, कनौजिया उसे नहीं करेंगे, वो झड़िया उसे नहीं करेंगे। इस विचारधारा को खत्म करना है। ये विचारधारा हम लोगों को अंदर रखना ही नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो परिचय क्या देते हैं, आप जात क्या हो, साहू तो लिखते हो ठीक है ना, जात क्या हो तो तेली है। झड़िया वाले भी तेली ही बोलते हैं, हम भी तेली ही बोलते हैं, जो दूसरे हैं वो भी तेली बोलते हैं, तो हम तेली एक है ना, हमको एक बनना ही पड़ेगा। ये जो बीच का जो फासला है, इस फासला को पूरी तरह से खत्म करना है। चाहिए बोले की चाहिए यहाँ कॉलेज पढ़ना चाहते नहीं है, हमारे सुविधा हम पढ़े नहीं सकते, तो हो सके तो हमने चंदा उठाए उनके पढ़ाई, चंदा उठा पढ़ाई के उनके आगे निकल जाओ। साहू समाज की यदि 2 IPS ऑफिसर बनी तो गर्व की बात है। ये सब चीज के हमने पूरा ध्यान देना चाहिए। और गाँव गाँव की जो अभियान चलाते जाए कि एकदम हर एक सप्ताह हम तो पूरा दिन देना, तब सप्ताह में एक दिन तो हम दी है ना, एतवार के दिन। और यदि तबियत खराब हो जाए तो अलग बात हो, जिससे वो दिन हम जाए ना सकने। मेरा बहुत अफसोस बेटे, पहला दिन आगे नहीं है, बहुत अफसोस लगल। आज हम बहुत कोशिश करके नहीं है, आज हमको उतना मूड ना रहेगा। यंग एसोसिएशन के प्रबंधन के तहत सालगंगा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट की पहला मैच पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किए। साथ ही पूर्व मंत्री अजीत सिंह बल्ले के साथ खेल का लुत्फ भी उठाए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट।
इस खेल में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच उधारबन FC वर्सेस जेपी एम्बिशन के बीच आयोजित हुआ, जिसमें जेपी एम्बिशन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में मात्र 18 रन ही बना पाई। जवाब में उधारबन FC ने मात्र 4 ओवर में 2 उइकेट खोकर जीत हासिल की। খেলা আরম্ভ হবে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুগণ, খেলাধুলা জীবনে একটা বিরাট বড় জিনিস। আজ খেলাধুলার মাধ্যমে ডিসিপ্লিন এবং পাঞ্চুয়ালিটি পাওয়া যায়। যারা যে যুবক তারা তাদের মা বাবাও চান তারা ছেলেমেয়েরা সবসময় খেলাধুলা করুক। খেলাধুলা করলে শরীর ভালো থাকে। বর্তমান যুগে শরীরটাই মূল ধন। টাকা পয়সা যার যত থাকুক, কিন্তু শরীর যদি ভালো না থাকে তাহলে তার কোনো মূল্য থাকে না। অতএব আমরা জানি যে খেলাধুলার মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, যে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়, সেই বন্ধুত্ব আজীবন থেকে যায়। অতএব আমি আশা করি এই কর্মকর্তারা যারা খেলা আয়োজন করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রত্যেকবার যেন খেলা আয়োজন করেন তার জন্য শুভেচ্ছা রইল। আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে যতটুকু পারি তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।